everyone, welcome to Busy Bees Class 9. So today I'm here with a new chapter, with a new part, French Revolution of Class 9. So before starting, I would like to say that please like, share, comment and subscribe my channel and share it with your friends. So today we are starting the outbreak of revolution. So last part जो थे हमने वो cover किए थे हमारे YouTube प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, तो आप प्लीज़ पहले जाके वो पार्ट्स देख लीजिए बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था. अगर आप वो पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको चैप्टर आगे नहीं समझ आ पाएगा. सो इस लेट्स रीड. Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section. How do you think he could have gone about doing this? In France of old regime, the monarch didn't have the power to impose the taxes according to his alone. Rather, he had to call a meeting of States General which would then pass his proposal for new taxes. The States General was a political body with the three states sending their representatives. However, the monarch alone couldn't decide when to call the meeting of this body. Last time it was done in 1614. So कहते हैं कि ल्यूइस 16 को इंक्रीज टैक्स करने थे. किस वजह से, ये आपको पता है कि इंक्रीज उसे किस वजह से करने पड़े थे, टैक्सेस, है ना. तो इसमें हमने ये पढ़ना है कि वो जो है ओल्ड रिजाइम का जो फ्रांस था उसमें जो किंग था, अकेला जो था मोनार्क, जो किंग था वो अपनी विल से टैक्सेस जो था हाई नहीं कर सकता था. ठीक है, तो रादर उसको एक स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ेगी. अब स्टेट जनरल क्या है कि एक ऐसी मीटिंग, पॉलिटिकल बॉडी कि जिसमें तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और कोई भी अगर लॉ वगैरह या बिल पास करना है उन्हें तो वो उस मीटिंग में इकट्ठे होके वहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है, लास्ट टाइम वो कब बुलाई गई थी, 1614 में. तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में ज़रूर आएगी कि व्हेन द लास्ट टाइम वाज द मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल इनवाइटेड, कब, 1614 को. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. So, on May 1789, Louis XVI called together an assembly of States General to pass the proposals for the new taxes. A representative hall at Versailles was prepared to host the delegates. The first and the second state was sent with 300 representatives each, who were seated in the rows facing each other, and while 600 members of third state who had to stand at the back. So the third state was represented by more prosperous and educated members. तो इसमें हमें बताया है कि स्टेट जनरल की मीटिंग कब बुलाई गई थी 5 मई 1789 को, कि जब जो ताकि वो जो है न्यू टैक्सेस का जो लॉ है उसे पास कर सकें. एक हॉल प्रिपेयर कराया गया था, कहाँ पे, उनकी खुद के पैलेस में, वर्सलेस में, ताकि सारे जो डेलीगेट्स हैं, मतलब सारे जो लोग रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे वो वहाँ पे आराम से बैठ जाएं. तो 300 रिप्रेजेंटेटिव्स फर्स्ट और सेकंड स्टेट के आए थे, मतलब फर्स्ट के भी 300 आए थे और सेकंड के भी 300 मेंबर्स आए थे. ओके, तो अकेले जो क्या कहते हैं 600 मेंबर्स आए थे थर्ड स्टेट के, जिन्हें बैक में खड़ना पड़ा था. तब जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे वो कौन से मेंबर्स आए थे, प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड, मतलब जो पढ़े लिखे आदमी थे वही आए थे. Peasants, artisans, women were denied to enter the assembly. However, their grievances and demands were listed for more than 40,000 letters which the representative had brought to with them. तो peasants, artisans और वुमेंस को यहाँ पे आने, असेंबली में आने की जो थी, जो एंट्री उनकी अलाउड नहीं थी. तो उनके ग्रेवेंसेस, मतलब कितने उनको दुख है, और उनकी डिमांड्स जो थी 40,000 लेटर्स में जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे उन वो लाए थे वो 40,000 लेटर्स. तो वोटिंग इन स्टेट जनरल in the past has been conducted according to the principle that each state have one vote. This time was Louis 16 was determined to continue with the same practice, but the members of the third state demanded the voting now be conducted by assembly as a whole, which each representative would have one vote. This one was the democratic principles put forward by the philosopher Rousseau in the book Social Contract. When the king rejected proposals of the third state, walked out of the assemblies in protest. तब क्या हुआ कि वोटिंग कैसे होती थी कि जैसे
एक ये फर्स्ट स्टेट है, ये सेकंड स्टेट है और ये थर्ड स्टेट है। तो हर एक स्टेट के बस 1-1 वोट होंगे, हर एक स्टेट के 1-1 वोट। अब ये दोनों स्टेट जो है साथ में, इनकी मिलके 2 वोट्स। तो ये अभी इनको क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा जो टैक्स है वो तो थर्ड स्टेट को ही पे करना पड़ेगा ना, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अपनी 1 और 2 वोट्स दे के अपना जो है बिल पास करवा सकते हैं। लेकिन अब जो थे थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे, वो चाहते थे कि एक पर्सन की बस 1 वोट हो, 1 पर्सन शुड हैव 1 वोट। एक एक मेंबर, मतलब जितने मेंबर्स हैं वहाँ पे, अगर 600 हैं, 600 वोट्स होनी चाहिए वहाँ पे। बट जो लुईस 16 ने था वो प्रैक्टिस मना कर दी कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये थिंकिंग उनके दिमाग में कहाँ से आई थी, 1 वोट 1 पीपल 1 वोट, कहाँ से आई थी, रोशियो की बुक में से, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी। तो किंग ने जब उनको प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, तब जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे वो असेंबली से बाहर आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए। The representative of third state viewed themselves as spokesmen in the French nation. On 20th June, they assembled in the hall in the indoor tennis in the grounds of Versailles. They declared themselves as a national assembly and swore not to disperse till they drafted a constitution for France and limit the powers of the monarch. They were led by Mirabeau and Abesius. तो कहते हैं कि जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब अपना एक फ्रेंच नेशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे। 20th जून को क्या हुआ, वो कहाँ पे बैठे, इंडोर डेनिस ऑफ कोर्ट ऑफ वर्सलीज में वो जाके असेंबल हो गए, और तब उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली कब डिक्लेयर किया, 20th जून। ये कब हुआ था, 1789 को। ठीक है। तो अब जो क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली जब उन्होंने घोषित किया अपने आप को, तो कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम जो मनार्क की पावर्स हैं उसे हम लिमिट करना चाहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं। ठीक है। इनके लीडर्स कौन थे, मिरेबियो और एबेसेस। जो मिरेबियो थे वो एक नोबल फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन वो उसके अगेंस्ट थे कि दो सोसाइटीज़, दो रिचर सोसाइटीज़ को ही बस इतना ज़्यादा माना जाए, और थर्ड स्टेट को जो है एकदम बुरी उनकी हालत हो, तो वो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। ही ब्रॉट आउट जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड्स एंड असेंबल्ड एट वर्सलीज। जो मिरेबियो थे वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पीकर थे, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। तो उन्होंने असेंबली में बहुत सारी पावरफुल स्पीचेस जो थी डिलीवर की। ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं कि एबेसियस ओरिजिनली अ प्रीस्ट कौन होते हैं, एक पंडित टाइप होते हैं। एबेसियस कौन थे, प्रीस्ट थे, जिन्होंने एक पैम्पलेट लिखी थी, व्हाट इज़ थर्ड स्टेट। ये इनकी पैम्पलेट का नेम है। ये आ सकता है कि एबेसियस ने क्या लिखी थी, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। और रोशियो की बुक अभी पीछे नाम आया था, क्या नाम था उसका, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो While National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of the France was stated in turmoil. A severe winter had meant a bad harvest. The price of bread rose. Often the bakers exploited the situation and hoarded supplies. After spending hours in long queues at bakery, a crowd of angry women stormed into the shops. At the same time, the king had ordered the troops to move to Paris. On 14 July, the agitated stormed and destroyed the Bastille. तो अब क्या हुआ कि नेशनल असेंबली जो थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, तब बाकी सारा फ्रांस जो था कोई प्लानिंग कर रहा था। तब जो विंटर हुई थी, तब उसमें हार्वेस्ट बहुत ज़्यादा बुरी हुई थी। मैंने आपको पहले बताया था स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव में कि पॉपुलेशन 23 से लेकर 28 मिलियन हो गई थी। तो फूड डिमांड्स जो थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन नहीं हो पाई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ड्रॉट आ गया था, तो मतलब बैड हार्वेस्ट हुई थी। तो ब्रेड के प्राइस की वजह से ही तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ब्रेड के प्राइस जो थे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और बेकर्स की दुकान पे, बेकरी में उन्हें बहुत ही ज़्यादा वुमेंस को काफ़ी देर तक खड़ा होना पड़ता था। तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए, तो तब वो पेरिस में चले गए। और जो फर्स्ट मैंने आपको फ्लैशबैक में जाते हैं, जाके आप देखो कि मैंने आपको सीन बताया था 14 जुलाई, कब, 14 जुलाई और 1789 का मैंने आपको सीन बताया था कि तब उन्होंने बैस्टिल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। काफ़ी सारी और मोमेंट्स इवेंट्स हुए थे तब, तो उसको जाके आप देख लीजिए।
In the countryside, rumors spread from village to village that lords of manor had hired bands of brigands who were on to destroy the ripe crops. Caught in frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked the Chataks. And they looted the hoarded grain, burned down the documents and the manorial dues. A large number of nobles fled from their home and migrating them to neighboring countries. तो र्यूमर्स थी कंट्री साइड मतलब जो गांव वाली विलेज वाली साइड होती है, तो वहाँ पे र्यूमर्स विलेज टू विलेज स्प्रेड हो रही थी कि जो है किंग ने अभी ट्रूप्स मंगवा ली हैं और जो क्रॉप्स जो बची हुई हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो लोग उसे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। चैटक्स जो है एक जो है क्या कहते हैं वर्ड है, तो इस ये किसको बिलोंग करता है? कैसल को। कैसल मतलब जहाँ पे वो रहते थे, वर्सलिस को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उन्होंने वहाँ से क्या किया, ग्रेन, जितना भी ग्रेन जो होता है गवर्नमेंट के पास होता है, लेकिन वहाँ पे तो मनाक थी, मनाक के पास जितना भी ग्रेन था उन्होंने ले लिया था, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स को जला दिया था। और बहुत सारे जो नोबल्स थे वो नेबरिंग कंट्रीज़ में जाके सेटल हो गए थे, इतना वो डर गए थे, भाग गए थे वहाँ से। Faced with with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded the recognition of the National Assembly and accepted the principle that his power would now be checked by the Constitution. On night of 4 August 1789, the Assembly passed decree of abolishing the feudal system and of obligations and taxes. The members of the clergy were forced to gave up their privileges, the thieves were abolished and lands owned by church were confiscated. तो क्या हुआ कि पावर जो थी, अब लुइस 16 को इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने मान ली थी नेशनल असेंबली की बात और कहा था कि अब जो पावर्स हैं वो भी जो मोनार्क की पावर्स हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के देखरेख में ही की जाएंगी। और 4 अगस्त को क्या हुआ था, असेंबली ने एक जो फ्यूडल सिस्टम था ऑब्लिगेशन और टैक्सेस का, उससे एकदम अबॉलिश मतलब ख़त्म कर दिया था। और जो मेंबर्स थे क्लर्जी, उन्हें अपनी प्रिविलेजेस को ख़त्म करने के लिए फोर्स किया गया था। और तेथीस जो टैक्स जो थे वो चर्च जो थर्ड स्टेट से लेती थी वो भी उन्होंने अबॉलिश कर दिए थे, और चर्च के पास जितनी भी लैंड थी वो उनसे छीन ली गई थी। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्यूड असेट्स फॉर वोट 2 बिलियन लिवर्स। जो उन्होंने लैंड छीनी थी उससे उन्हें कितने पैसे मिले थे? 2 बिलियन लिवर्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। फ्रांस बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की मतलब जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो था लेकिन मोनार्क भी था, मतलब साथ साथ में किंग का रूल होता था प्राइम मिनिस्टर की जगह। ठीक है, तो नेशनल असेंबली completely drafted a constitution in 1791. Sorry, its main object was to limit the powers of the monarch. These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions: legislature, executive, and judiciary. This made France a constitutional monarchy. फिगर 7 एक्सप्लेन्स हाउ दी पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। तो फ्रांस ने जो थी कम्प्लीटली जो ड्राफ्ट कर ली थी कॉन्स्टिट्यूशन, कब? 1791 में उसने कम्प्लीटली जो थी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर ली थी। और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि पावर जो है मोनार्की की उससे लिमिट कर देना, कि मतलब कि थर्ड स्टेट को इतना पीछे भी मत किया जाए, मतलब उसे नॉर्मल रखा जाए। तो 1 पर्सन की 1 वोट होनी चाहिए। तो अब जो सारी पावर थी अकेले किंग के पास नहीं थी, उसके पीछे 3 उन्होंने क्या लगा दिए थे इंस्टीट्यूशंस: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो अब हम डायग्राम से अच्छी तरीके से समझते हैं कि अब जो लेजिस्लेचर है वो एक नेशनल असेंबली मतलब 745 मेंबर्स को चूज़ करता है। तो क्या कहते हैं, पहले तो क्या होता है कि हम दो टाइप के सिटीजन्स के बारे में पढ़ते हैं, एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स वो सिटीजन्स होते थे जिन्हें वोट देने का राइट होता था, और 4 मिलियन उनकी पॉपुलेशन से 28 मिलियन हो गई थी। इसका मतलब कि जो एक्टिव सिटीजन्स हमें यहाँ पे कम्प्लीटली बताया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन वेस्टेड द पावर to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. These citizens were a group of electors were turned to choose the assembly,
Not all citizens, however, had right to vote. Only the men above 25 of age who paid the taxes of three laborers' wage were given the status of the active citizens. Labor enlightened the remaining men and women who were classified as the passive citizens to qualify elector as a member of assembly. A man had to belong to a highest bracket of the taxpayer. तो अब हमें एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन, एक्टिव सिटीजन क्या होते हैं कि वो सिटीजन जो एक टैक्स पे करते हैं, मतलब 3 लेबरर जितना कमाता है उतना वो अगर टैक्स पे करते हैं तो वो एक एक्टिव सिटीजन है और 25 की एज से ऊपर उन्हें वोटिंग का राइट है। ठीक है। और बाकी सारे जो थे पैसिव सिटीजन, मतलब जो वेज जो थे वो पे नहीं कर पाते थे, वुमेन, चिल्ड्रन और यूथ थे उसमें आ गए थे, इंक्लूड होते थे। और जो पे नहीं कर सकते थे टैक्स, मतलब गरीब होते थे काफ़ी। तो अब क्या होता था कि एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स जो हैं वो क्या करते थे, वोट देते थे अपनी इलेक्टर्स, अपने 5,000 मैन खड़ा देते थे। कहाँ पे? नेशनल। और वो मैन जो थे वोट करके क्या बनाते थे? नेशनल असेंबली। तो उसके बाद एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन था? किंग। किंग जो था अपने साथ साथ मिनिस्टर उसे गाइड करते थे, और जो एक्टिव सिटीजन्स थे वो जुडिशरी को भी वोट करते थे और एक जज को बनाते थे। मतलब ये सारा अगर आप डायग्राम अगर आपको आए कि किंग की पावर्स जो थी कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, तो आप ऐसा अगर डायग्राम बनाएंगे तो वो भी आपको 5 मार्क्स में मिल जाएंगे बहुत अच्छे से। और अगर आप साथ में लिख देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। Constitution began with a declaration of the rights of men and citizens. Rights such as right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as the natural and inalienable rights. That is belong to a human being by birth and couldn't be taken away. It is the duty of the state to protect the citizens' natural rights. तो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक राइट्स के डेक्लरेशन से स्टार्ट होता है कि हर एक आदमी, हर एक सिटीजन का एक कोई ना कोई राइट होता ही होता है। दैट आर कॉल्ड, मतलब जो हमारी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन में भी आती है, राइट टू लाइफ, फ्रीडम टू स्पीच की मतलब राइट टू लाइफ है, हर एक इंसान को जीने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब कोई भी इंसान अगर अपनी कोई बात रखना चाहता है, जैसे अब किसान जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे फार्मर्स, तो वो अपनी बात रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है दे हैव फ्रीडम टू स्पीच। उनके पास फ्रीडम है कि वो स्पीच अपनी मतलब बात रख सकते हैं। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपना ओपिनियन रख सकते हैं, वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरह है। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब जो लॉ है वो इक्वल बने हैं। अगर कोई अगर जो क्राइम अगर एक आम आदमी करता है, कॉमन पर्सन अगर कोई क्राइम करता है, उसके लिए भी सेम सज़ा होगी जो प्राइम मिनिस्टर के लिए होगी। प्राइम मिनिस्टर कोई क्राइम करता है तो उसके लिए भी सेम सज़ा होगी जो कॉमन पर्सन के लिए होती है। तो मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब हर एक इंसान जो है, हर एक इंसान के लिए लॉ जो है इक्वल है। और इस्टेब्लिश्ड है नेशनल राइट्स, तो मतलब वो नेचुरल राइट्स हैं हमारे, दैट इज़ बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ, एंड वो जो हर एक ह्यूमन बीइंग को बाय बर्थ मिलते हैं और कोई भी उनसे ये राइट जो है नहीं छीन सकता। अब वीडियो होगी ये लंबी, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड share it with your friends. Stay tuned, stay home, stay safe.